So we'll start today's session. In the last lecture, we have seen a very important aspect of pairwise alignment program. In pairwise alignment program or pairwise alignment strategies, we have seen that there are three major things that we have to look after. One is how we can score an alignment by using the scoring matrices. We have seen there are two types of major scoring matrices are there. One is PAM, that is point accepted mutation, and second is BLOSUM, that is block substitution matrices. These two matrices we can use to align any sequences. We have seen the background of these matrices by learning some basic concepts, where we have seen that whenever we are aligning two sequences with each other, we need to score them for their match. Where we have seen there are two major concepts are there. One is match and mismatch score, and second is the gap score. Based on these two scores, we will be able to classify them as a better match or a least match, something like that. Then we have shifted ourselves to a BLAST program. We have seen nucleotide BLAST. In a nucleotide BLAST, we have seen that how a one nucleotide can be compared with the databases. Okay. Today also we learn in detail about this BLAST program, that how this BLAST program works, and we will go for all the programs of the BLAST which are available within it. Actually, there are 5 programs that we have to learn today. We'll try to learn at least 2 or 3 programs today, and if time permits, we'll go for the 4th and 5th. So I'm presenting to you my screen so that you will be able to understand that part. So we'll learn one by one what are the things that we have to cover in today's topic, and we'll take a background of that all concepts, and then we'll shift ourselves to the programs. Uh, in the BLAST program, there are 5 different strategies are there by which you can analyze your sequences. So those sequences needs to be understand for their features. Then and then only you will be able to analyze for their sequence analysis. So what is exactly a BLAST that we will cover today? What is a BLAST is, whose full form is Basic Local Alignment Tool. Okay, it's a basic local alignment tool. Now what are these terms are there that we have to understand today? What is this basic local alignment tool means to us? So some concepts needs to be understand first. Now there are 3 things. One is basic local, then alignment, and third is the tool. So actually BLAST needs to understand by 3 parts. One is basic local, means local. What is this local? Local is a local alignment actually. Okay. So basic local. There are 2 types of alignments are there. One is local, another is global. Okay. So people may ask you how many types of alignments are there. So you can tell them pairwise alignment and multiple sequence alignment. Along with that, you can also tell them that there are some other features of the alignments known as local alignment and global alignment. What are these things we need to understand first?
What is the local alignment? In a local alignment, what we have to find it out is that whenever I am saying local alignment, then means you are doing a wide versus small analysis. Okay, wide versus small means what? Wide means, for example, it may be a genome, and you are comparing it with the gene. Okay, what does this means? This means that you are trying to find out a gene sequence in a genome sequence. Okay, so if you are searching a gene sequence in a genome sequence, means what you are doing, you are finding out a very local thing. Local thing means what? It's a gene in a global thing, right? That is genome. Okay, so it's a local versus global. So local thing means a very small part of the genome that you are searching. Hence, what BLAST is actually doing? What BLAST is actually doing? BLAST is searching a gene or mRNA sequence or EST sequence or whole genome sequence in a big sequence. Okay, big sequence means maybe a genome, okay, or library of the genome, something like that. But it never compares genome versus genome. मीन्स आप कभी भी उसको क्वेरी जीनोम नहीं दे सकते, जीनोम पूरा दे के दूसरे जीनोम से आप कंपेयर नहीं कर सकते. इसका मतलब है कि आप ग्लोबल वर्सेस ग्लोबल नहीं कर सकते, इसीलिए उसको लोकल अलाइनमेंट कहा जाता है. ठीक है, सो कीप इन माइंड व्हाट इज लोकल एंड व्हाट इज ग्लोबल. सो ग्लोबल वर्सेस ग्लोबल यानी क्या? जीनोम वर्सेस जीनोम अगर आप कंपेयर कर रहे हो, यानी एंड टू एंड. जीनोम इटसेल्फ इज अ कंप्लीट सिस्टम, है ना, वो कंप्लीट बॉडी है. पर जीन ये कंप्लीट बॉडी नहीं है, जीन इज अ पार्ट ऑफ द जीनोम. इसलिए हम जीन हो गया या एमआरएनए हो गया या होल जीनोम सीक्वेंस जो जीनोम का पार्ट है और वो पूरा कंप्लीट पार्ट नहीं है ना, इसलिए उसको कहा जाता है लोकल अलाइनमेंट. पर जब आप कोई जीनोम वर्सेस जीनोम अलाइनमेंट करते हो तो वो हो जाता है ग्लोबल अलाइनमेंट. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अगर कोई स्मार्ट पेपर सेटर होगा तो आपको राइट ऐसा लिख सकता है, गिव द डिटेल्स अबाउट लोकल अलाइनमेंट टूल्स. ठीक है, लोकल अलाइनमेंट टूल्स. आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकल अलाइनमेंट टूल्स के बारे में बताइए, तो आपको यहाँ पे किसके बारे में लिखना है, यू हैव टू राइट इट अबाउट ब्लास्ट. ठीक है, तो ब्लास्ट यानी लोकल अलाइनमेंट टूल है, ये समझ में आपको रखना है. ये लिखा नहीं रहता है बहुत जगह, इसलिए कंफ्यूज हो जाते बहुत बार बच्चे. कह रहे लोकल अलाइनमेंट यानी टूल यानी कौन सा, तो लोकल अलाइनमेंट टूल यानी ब्लास्ट. तो फर्स्ट वर्ड हमने समझ लिया लोकल. ठीक है, अब सेकंड टर्म जो ब्लास्ट में है वो है अलाइनमेंट. तो हम कौन सी अलाइनमेंट करें, लोकल अलाइनमेंट, इसलिए उसको लोकल अलाइनमेंट कहा जा रहा है. और टूल का मतलब इट्स अ सिस्टम. ओके, इट्स अ सिस्टम अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लास्ट यानी बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल. ये उसका मीनिंग है. ठीक है, ये हमेशा याद रखो. देन व्हाट इज इट्स फंक्शन, एग्जैक्टली काम क्या करता है ये, हाउ इट फंक्शंस. इसके पास में कुछ स्पेशल एबिलिटीज है. ठीक है, ये एक्चुअली एल्गोरिदम पे डिपेंडेंट है. मैं इसका पीछे का बैकग्राउंड समझा रहा हूँ. ठीक है, ये एक एल्गोरिदम है. ठीक है, या उसको हम सिंपल भाषा में एक मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स है, ठीक है, इट्स मैट्रिक्स जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे आउटपुट्स देता है. ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे आपको आउटपुट देता है. हमने कल पढ़ा था ये वर्ड्स, कोई बता सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है? पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिसेस. वेरी गुड, पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिसेस. ये वन ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेटर है जो आपको स्कोर के बेसिस पे आउटपुट बताएगा. ठीक है, आउटपुट्स ऑफ होमोलॉजी.
या फिर मैच ऑफ द सीक्वेंसेस, है ना। तो ये उसी के पीछे में वर्क करता है। तो हमने अभी तक ये सीखा कि फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ये फंक्शन करता है बाय यूजिंग द एल्गोरिथम्स और मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स काम कैसे करते हैं? दे यूटिलाइजेस द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिसेस। इसका जो बेस है वो लॉजम या फिर पैम के बेसिस पे सेट है, ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। तो फंक्शन में अल्टीमेटली फंक्शन क्या करता है? तो ये फंक्शन इस तरह करता है कि ये यूजर यानी कौन? हम यूजर को फैसिलिटी देता है टू गिव इनपुट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर? आप उसका इनपुट दे सकते हैं न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन्स का, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूजर क्या करेगा? यूजर उसको एक इनपुट देगा विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन। हमने ऑलरेडी समझ लिया है न्यूक्लियोटाइड यानी कौन कौन, न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन आ सकता है? कोई भी एक बताएं, क्या क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स में? डीएनए आरएनए। हाँ, डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए में कौन कौन? डीएनए के अंदर कौन? जल्दी जल्दी बताओ। नाइट्रोजन बेसिस। नहीं, जीन्स, एमआरएनए, होल जीनोम सीक्वेंस, है ना? बोला था ना, बताया था ना। तो ये आप इनपुट में दे सकते हैं, यानी आप इसमें जीन का पुट कर सकते हो, एमआरएनए सीक्वेंस पुट कर सकते हो, होल जीनोम सीक्वेंस कर सकते हो, इवन बीएनटीआर भी पुट कर सकते हैं। कोई भी तरह का सीक्वेंस आप उसमें पुट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन आप उसमें पुट कर सकते हैं, इवन प्रोटीन सीक्वेंस भी आप उसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजर ने क्या क्या दे दिया इसको? यूजर ने उसको न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन सीक्वेंस दे दिया है एज एन इनपुट। नेक्स्ट वो कुछ पूछेगा, ठीक है। कौन पूछेगा? सर्वर या सॉफ्टवेयर या ब्लास्ट प्रोग्राम आपको पूछेगा व्हाट यू वांटेड टू डू, व्हाट यू वांटेड टू डू। आपके पास में अब क्या होनी चाहिए बताइए? स्ट्रेटेजी, राइट। आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर तो खड़ा है सामने पे, वो पूछ रहा है व्हाट यू वांटेड टू डू, यू नीड टू डिजाइन अ स्ट्रेटेजी। तो हमेशा ये प्रोग्राम में स्ट्रेटेजी से काम करना पड़ता है, बिकॉज बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो सब्जेक्ट है ये इट्स अ क्लिक ऑफ द बटन, ऐसा बोलते हैं, है ना। इट्स अ क्लिक ऑफ द बटन। क्लिक ऑफ द बटन है, लोगों को बहुत आसान लगता है कि अरे सर वो क्या है, उस पर बटन दबा दो तो हो जाता है, पर इतना आसान नहीं है। हर बटन दबाने के पीछे कुछ ना कुछ फिलोसफी होती है उसकी, है ना, स्ट्रेटेजी होती है। अगर मैं कोई भी बटन उसमें का दबा रहा हूँ या सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके पीछे का कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमको स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी आपका एल्गोरिदम डिसाइड करेगा, ठीक है। आप कौन सा एल्गोरिदम से आगे जाने वाले, ठीक है, यानी आप कौन से कैलकुलेशन को साथ में लेने वाले हो, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको आपके घर में शादी है तो आप अकेले नहीं जाते शादी के कोई परचेस में, है ना। आप 10-12 लोग लेके जाते हो साथ में और उसमें से 2-2 3-3 की टीम बनाते हो और बोलते हो कि जाओ 2 लोग इधर जाओ 2 लोग उधर जाओ, ये सब खरीद के लाओ। ऐसा तो नहीं अकेला बंदा सारा कुछ कर लेता है ना। पर अगर आप जब आपके खुद की पर्सनल शॉपिंग करने जाते हो तो आप किसी को लेके जाते हो कि नहीं? आप अपने हिसाब से जाते हो। सो यही सारी चीजें, दैट इज अ स्ट्रेटेजी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एनालिसिस कर रहे हो, उस हिसाब से वो एल्गोरिदम और कैलकुलेशन डिसाइड होंगे। तो ये होने के बाद में उसने तो न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन को सिलेक्ट कर लिया। वो अगला क्वेश्चन आपको ये पूछेगा व्हाट यू वांटेड टू डू। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा उसका ये बोलेगा व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू विद दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू विद दिस सीक्वेंस। तो आपका सबसे पहला आंसर होना चाहिए कंपेयर, है ना। आप क्या कर रहे हो?
आप कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यहाँ आप कंपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कल ही हमने पढ़ा था अलाइनमेंट हम कर रहे हैं, अलाइनमेंट कर रहे हैं यानी कंपेयर हम कर रहे हैं, ठीक है। यस, वी आर डूइंग द कंपैरिजन। तो फिर वो क्वेश्चन पूछेगा फिर से, ठीक है, विद होम, आप किससे कंपेयर करोगे? तो फिर आपके पास में आंसर होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, मेरे पास एक जीन है, मैं प्रोटीन के साथ उसका कंपैरिजन कर सकता हूँ क्या? मेरा क्वेश्चन है। मेरे पास में एक जीन सीक्वेंस है, कल हमने पढ़ा था ना ऐसा कुछ, फिर उसके नीचे सीक्वेंस आ गया था। ये कर सकते हैं, पर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? किसी जीन को प्रोटीन के साथ में अलाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? राहुल, यू कैन आंसर। यस सर। कर सकते हैं क्या? जीन को प्रोटीन के साथ कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, अकॉर्डिंग टू कोडॉन के हिसाब से तो कर ही सकते हैं। कर सकते हैं, बराबर है, कोडॉन के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, यानी हाँ कर सकते हैं, ये एक स्ट्रेटेजी है। तो आपको पूछेगा वो कि आप क्या करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा कि जीन है मेरे पास में, मैं जीन के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर ये हो गया जीन जीन यानी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड कंपैरिजन। सेकंड आप बोल रहे हो कि मेरे पास एक जीन है और मैं उसको प्रोटीन के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, तो ये कौन सा हो जाएगा? जीन प्रोटीन कंपैरिजन। ओके, ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, जीन विद जीन करना है या जीन विद प्रोटीन करना है। तो ये डिसीजन के बेसिस पे आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू डू, जीन वर्सेस जीन है तो एक पर्टिकुलर डेटाबेस सिस्टम, जीन वर्सेस प्रोटीन है तो दूसरा डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। ये आपको पूछेगा। ये हो जाने के बाद में वो ऑपरेशन शुरू कर देगा उसको, ठीक है। ऑपरेशन शुरू करने के बाद में वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है। आउटपुट का इन्फ्रेंस आपको निकालना पड़ेगा कि इसके बेसिस पे आपको क्या आउटपुट निकले। ये इन्फ्रेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है जीन फंक्शन, ठीक है, जीन फंक्शन, या फिर प्रोटीन फंक्शन पता कर सकते हो, या फिर आप पता कर सकते हो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। बेसिकली ब्लास्ट ये दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तो जीन या प्रोटीन का फंक्शन पता कर सकते हैं, या फिर आप उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली पूरा ब्लास्ट क्या डिफाइन करता है, ठीक है, अल्टीमेटली पूरा ब्लास्ट ये डिफाइन करता है, ब्लास्ट एक्सेप्ट्स न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन सीक्वेंसेस, ठीक है। ब्लास्ट एक्सेप्ट्स न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड compare it with nucleotide और प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस, ठीक है, एंड tries to calculate statistically significant matches, ठीक है, statistically significant matches to infer function and evolutionary relationship, ठीक है। अल्टीमेटली ये सारा काम वो करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन सीक्वेंस को और कंपेयर करता है, ठीक है, कंपेयर विद न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन सीक्वेंस। मैंने अभी ऑलरेडी समझाया आपको, न्यूक्लियोटाइड को आप प्रोटीन के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, प्रोटीन को आप न्यूक्लियोटाइड से कंपेयर कर सकते हो, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड और
protein sequence database and then tries to calculate statistically significant matches to infer function and evolutionary relationship. ये अल्टीमेट उसका यूज है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो है ब्लास्ट के अंदर वो है फॉर्मेट्स, ठीक है। सबसे पहले आपका सीक्वेंस का फॉर्मेट्स क्या आपके पास होने चाहिए। तो आप 3 टाइप्स के फॉर्मेट से आप एक्सेशन ब्लास्ट का शुरुआत कर सकते हो। वन इज द नोन एज एक्सेशन नंबर, यानी आपको जब इनपुट देना पड़ेगा एज ए यूजर तो आपको उसको एक्सेशन नंबर देना पड़ेगा। एक्सेशन नंबर आप कुछ इस तरह दे सकते हैं, ये एक यूनिक एक्सेशन नंबर होता है हर एंट्री का जो एनसीबीआई में अवेलेबल होता है। यानी ये सीक्वेंस आपका कौन सा सीक्वेंस है, थर्ड पार्टी, या आपका थर्ड पार्टी सीक्वेंस। अगर आप एक्सेशन नंबर दे रहे हैं इसका मतलब है कि आपने ऑलरेडी सबमिटेड सीक्वेंस को एनालिसिस में लिया है, इसको बोलेंगे हम थर्ड पार्टी। हाँ, और योर ओन सीक्वेंस भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आप अपना खुद का सीक्वेंस भी दे सकते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, जीन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, एमआरएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, प्रोटीन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो वो आपका खुद का सीक्वेंस रहेगा, वो भी आप यहाँ पे सबमिट इनपुट में दे सकते हैं। जब भी आप इनपुट में देंगे आपको हमेशा याद रखना है वो कौन से फॉर्मेट में देना है, फास्टा के फॉर्मेट में देना है, कुछ इस तरह, ठीक है। या फिर आप जीआई नंबर दे सकते हैं, ठीक है। जीआई नंबर जो होता है इसको बोलते हैं जीन आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये जीन आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसके बेसिस पे दे सकते हैं। विदाउट फास्टा फॉर्मेट आप इस सीक्वेंस में नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मेट वो एक्सेप्ट करते हैं। इसमें और एक फैसिलिटी है कि आप मोर देन वन सीक्वेंस भी एक साथ एनालिसिस में डाल सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन सीक्वेंस, जरूरी नहीं कि हर बार एक एक डालते जाना है, पर अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो आप एक से ज्यादा एक्सेशन नंबर डाल दीजिए, ठीक है। एक से ज्यादा सीक्वेंसेस होंगे तो फास्टा फॉर्मेट से सेपरेटेड होंगे। हर एक फास्टा फॉर्मेट डिसाइड करेगा कि उतने सीक्वेंसेस उसके अंदर है, ठीक है। तो ये जो इनपुट कॉलम है इसमें आपको ये पुट करना है। ब्लास्ट और एक काम करता है, ब्लास्ट और एक काम क्या करता है, जब आपने आपका सीक्वेंस उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मैंने अभी जैसे बताया जैसे फास्टा में, ठीक है, जीआई एक्सेशन नंबर में, वो आपको और एक फैसिलिटी देता है कि आप 2 सीक्वेंसेस आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। 2 सीक्वेंस कंपेयर विथ ईच अदर। यहाँ क्या हो रहा है कि अगर आपके पास 2 सीक्वेंसेस है और आप चाहते हो कि 2 सीक्वेंस एक दूसरे से कंपेयर हो, और वो सीक्वेंसेस डेटाबेस के नहीं है, वो सीक्वेंसेस आपके खुद के हैं, ठीक है, वो सीक्वेंसेस आपके खुद के हैं, तो फिर आप उसके कंपेयर 2 सीक्वेंसेस जिसको बोलते हैं ब्लास्ट 2, ये प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। वही के अंदर उसी के अंदर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा सीक्वेंस किसी डेटाबेस के सीक्वेंस से कंपेयर नहीं हो पर मैंने जो सीक्वेंस दिया उससे कंपेयर हो, तो फिर आप ब्लास्ट 2 का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जहां पे एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस से डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज, पर मैं आपको पहले बैकग्राउंड क्रिएट करा के दे रहा हूँ उसका। फिर ये हो गया इनपुट सेक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट सेक्शन, आपने इनपुट दे दिया। अब इनपुट में भी एक चीज होती है, जैसे मान के चलते हैं कि आपने AB486008 ऐसा इनपुट दे दिया, एक एक्सेशन नंबर है, और इसकी अगर मैं हिस्ट्री देखूं तो ये सीक्वेंस मेरे को 1200 न्यूक्लियोटाइड दे रहा है। ये डेटाबेस में अवेलेबल है, मान के चलिए इसकी इन्फॉर्मेशन। ये 1200 न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ये भी 488600 पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। पर मुझे ब्लास्ट एनालिसिस में पूरे 1200 न्यूक्लियोटाइड नहीं लेके जाने, क्योंकि है तो पूरा 1200 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। सो आई कैन रिड्यूस द लेंथ, ठीक है, ऑफ सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन रिड्यूस द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। इसको बोलते हैं लिमिट, ठीक है, या फिर सीक्वेंस लिमिट। सीक्वेंस लिमिट में क्या होगा, आपको एक रेंज मिलेगी, रेंज देनी है। रेंज यानी क्या, स्टार्ट एंड स्टॉप। आपको बताना है कि ये 1200 है ना, इसमें से मुझे सिर्फ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से 900 न्यूक्लियोटाइड तक जो है वही एनालिसिस में करने हैं। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट के आगे लिखोगे 1 और स्टॉप के आगे लिखोगे 900। इससे क्या होगा,
इवन दो आपने ये कोड दिया है AB486008, इसमें 1200 न्यूक्लियोटाइड्स है, पर ये पूरे के पूरे एनालिसिस में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने उसमें लिमिट पुट कर दी फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से 900 न्यूक्लियोटाइड तक ही एनालिसिस करो। तो ये एक लिमिट ऑप्शन उसमें इनपुट में अवेलेबल है। पॉइंट क्लियर? किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को डाउट है कुछ? ओके, नो डाउट। सो हमने इनपुट दे दिया, अब सेकंड पार्ट। सो इनपुट इज रेडी, ठीक है। अब हमको कंपेयर किससे करना है वो देखना है। कंपेयरिंग मटेरियल कौन है? कंपेयरिंग मटेरियल ने आपको आपका सीक्वेंस किससे कंपेयर करना है, तो आपके पास में है डेटाबेसेस, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं जो आप कंपेयर कर सकते हैं। सबसे जो स्टार्टिंग में होता है, अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो तो ये डेटाबेस होता है जिसका नाम है NRNT, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियोटाइड एनालिसिस कर रहे हो तो NRNT इसका मतलब है नॉन रिडंडेंट न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस, ठीक है। नॉन रिडंडेंट न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। नॉन रिडंडेंट न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस यानी क्या? नॉन रिडंडेंट का मीनिंग है नॉन रिपीटेटिव, यानी ब्लास्ट में जो भी सीक्वेंसेस एनालिसिस में आएंगे, जो डेटाबेस से आएंगे, वो कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं होगा यानी रिपीट इन इट्स ओन फीचर्स, यानी एक जैसे सीक्वेंसेस कभी भी एक के नीचे एक नहीं आएंगे। जब पहला वाला सीक्वेंस एनालिसिस में आएगा तो दूसरा उससे कहीं ना कहीं वेराई करेगा, तभी वो वहां पे आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। इसको बोलते हैं नॉन रिडंडेंट न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस। अलॉन्ग विद दैट उसके पास में EST डेटाबेस है, उसके पास जीनोम डेटाबेस है, उसके पास में RNA डेटाबेस है, उसके पास में रेफ सीक्वेंस डेटाबेस है, उसके पास पेटेंट सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं। तो ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आपका सीक्वेंस किससे कंपेयर करना है। ये सारी फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल। ये सिलेक्ट हो जाने के बाद में आएगा ऑर्गेनिज्म सिलेक्शन। ऑर्गेनिज्म सिलेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक ब्लास्ट कर रहे हो तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड ही एनालिसिस करेगा, किसी और ऑर्गेनिज्म को पिक्चर में नहीं लाएगा। मान के चलता हूँ होमो सैपियंस ब्लास्ट, तो आप सिर्फ होमो सैपियन के ही सीक्वेंसेस एनालिसिस में ले रहे हैं, किसी और के। इसके अलावा आपके पास में और एक ऑप्शन है जो होता है अनकल्चर्ड स्लैश मेटाजेनोमिक्स, ठीक है। अब आपका जो सीक्वेंस आपने इनपुट में दिया, ये हमेशा आप चाहोगे किसी ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंस के साथ कंपेयर हो, पर कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप किसी ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस मैच नहीं करना चाहते, आप किसी अनकल्चर्ड ऑर्गेनिज्म का या मेटाजेनोमिक्स का डेटा कंपेयर करना चाहते हो। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है मेटाजेनोमिक्स क्या है, जो सबसे पहला लेक्चर था, याद होगा तो, है ना। कोई बता सकता है क्या था मेटाजेनोमिक्स? मेटाजेनोमिक्स क्या है? Population of different organisms. हाँ हाँ, प्रेजेंट इन सॉइल और एयर एंड वाटर, ये सब मेटाजीनोम है, क्योंकि इनका कोई लिविंग सेल से रिलेशनशिप नहीं है, यानी है बट इनडायरेक्ट है, क्योंकि जो सोर्स ऑफ आइसोलेशन जो है वो सॉइल वाटर एयर है, इसलिए ये मेटाजेनोमिक्स है। इसीलिए इनको किसी भी ऑर्गेनिज्म में पुट नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्लास्ट प्रोग्राम में क्या किया है, उसको एक अलग सेक्शन में रखा है, अनकल्चर्ड या मेटाजेनोमिक्स, यानी आप अपना सीक्वेंस इनके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको सीक्वेंसेस। फिर आती है एल्गोरिथम सिलेक्शन। मैंने आपको कल समझाया था एल्गोरिथम्स कितने टाइप के थे। एक था मेगा ब्लास्ट, ठीक है, ये नॉर्मल था, और भी है अभी। फिर दूसरा था डिसकंटिन्यूअस ब्लास्ट, और थर्ड था नॉर्मल ब्लास्ट, है ना, नॉर्मल ब्लास्ट। आप इस तरह से स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ब्लास्ट आपको इस्तेमाल करना है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। एंड इस तरह से आप ब्लास्ट एनालिसिस कर सकते हैं। चलो, नाउ विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट।
so that you will be able to understand. So go to the Google, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा देता हूँ. You can write down NCBI. आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से ब्लास्ट प्रोग्राम में जा सकते हैं. क्लिक ऑन अ ब्लास्ट. And now it is ready. So Blast is a server actually which has a 5 different programs. यहाँ पे आपको 4 ही दिखते हैं, but we have 5 different programs which are available. ठीक है? So what it can do, यहाँ पे लिखा हुआ है that it finds the region of similarity between the biological sequences. What program is doing? Program compares nucleotide or protein sequence to the sequence databases and then calculates the statistical significance. This I have already explained to you. Now we'll reach to the first program, that is nucleotide blast. Okay, यहाँ पे देखिए एक स्पेशल जीन ब्लास्ट भी है. ठीक है, दिख रहा है आपको? ऑर्गेनिज्म वाइज ब्लास्ट भी है. अगर आप चाहो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये बहुत बड़ा है. इसके लिए हमको 5 से 6 दिन लगने वाले हैं समझने के लिए. बहुत बड़ा ये है प्रोग्राम. तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में जाएंगे. So what is the nucleotide blast and what it can do, that we have to learn here. This is very important. You need to understand what is this. Here is the blast and program which can search nucleotide database using a nucleotide query. That means यहाँ पे आप कभी भी प्रोटीन सीक्वेंस इनपुट में नहीं दे सकते. ठीक है, you need to give a nucleotide query. और ये nucleotide query किससे कंपेयर हो रही है? न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस से ही कंपेयर हो रही है. Okay, ये मेरी स्ट्रेटजी है अभी. So I will put a sequence here and we'll try to search. मैं एक सीक्वेंस पुट कर देता हूँ AB486008. आप बोलोगे सर हमको तो सीक्वेंस नहीं मिलता, कहाँ से लाएंगे? तो मैं आपको एक बार शोकेस कर देता हूँ. सबको वैसे पता है, फिर भी मैं आपको एक बार शोकेस कर देता हूँ. You can retrieve it from any of the database, है ना? यहाँ से आप कहीं से भी आप सीक्वेंस रिट्रीव कर सकते हो, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस. यहाँ से आपको जो सीक्वेंस चाहिए आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं. मान के चलता हूँ मुझे अमाइलेज चाहिए, यू कैन रिट्रीव एनी सीक्वेंस फ्रॉम अमाइलेज एंड ऑल. आप पर्टिकुलर सीक्वेंस रिट्रीव कर सकते हैं. ठीक है, जैसे फास्टा फॉर्मेट एंड यू कैन कॉपी दिस सीक्वेंस. याद रखिए, कॉपी फ्रॉम द ग्रेटर देन साइन टिल एंड, then copy it and put it into this place. Okay, or alternatively you can use any G accession number. This is an accession number AB486008. तो ये तीनों सिस्टम से आप उसको इनपुट में दे सकते हैं. तो मैंने AB486008 अभी पुट किया हुआ है. ठीक है, आप चाहो तो उसको पर्टिकुलर जॉब टाइटल दे सकते हैं. मैं बोलता हूँ उसको query 1. query 1 यहाँ से. Instead, you can also upload your file from this part. If you have prepared somewhere around the corner a notepad file with a FASTA format in that, आप यहाँ से upload कर सकते हैं. ठीक है, या फिर directly यहाँ पे paste कर सकते हैं. Then I have already told you the query range, start and stop. जो मैंने बताया था, जैसे आप फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से लेके 900 न्यूक्लियोटाइड का ही एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसको रेंज दे दीजिए 1 to 900. तो क्या होगा, इसका लिमिट सेट हो जाएगा कि ये ओनली 900 न्यूक्लियोटाइड तक ही वो सर्च हो पाएगा. अभी हमारा ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पुट करें. देन मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि इफ यू डोंट वांट टू कंपेयर दिस सीक्वेंस विद द डेटाबेस सीक्वेंस, then you have to go for align 2 or more sequence. As you can see here, click it. What will happen? There will be a change. Now you can see there are 2 windows are there. Put one here and put another sequence here and just go for the analysis. But right now we are not doing this, hence skip that part. It will come back. Next part is to select the database. In a standard database, I have already told you there are so many types of databases are there. You can choose any of them as per your requirement. ठीक है, ये स्टडी करने का मैटर है. आप जितना स्टडी करेंगे उतना आपको समझ जाएगा कि कौन सा डेटाबेस आपने इस्तेमाल करना चाहिए. If you don't know anything right now, keep it in R&D. Then organism, you need to put an organism name. ठीक है,
अभी इस ऑर्गेनिक इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए आपको कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, तो आप चाहे तो उसको ओपन रख सकते हैं, बट आई नो इट इज वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं उसका नाम दे देता हूँ बैसिलस कोएगुलेंस के साथ कंपेयर करो, ठीक है, बैसिलस कोएगुलेंस, सो आई एम कंपेयरिंग इट विद बैसिलस कोएगुलेंस। यहाँ और एक ऑप्शन है, यहाँ लिखा है ऐड ऑर्गेनिजम्स, यू कैन ऐड दैट ऑर्गेनिज्म, means other than coagulants, if you wanted to increase number of search for other organisms, you just go for add organism, okay, then you can put down the name of that organism. जैसे अब मुझे लगता है मुझे I have to compare Bacillus pneumonia, like that. What will happen now? For both these sequences, their nucleotide sequences will be getting compared out with this particular सीक्वेंस ऑफ AB486008। पर आप चाहते हो कि नहीं, पहले मुझे सिर्फ कोएगुलेंस के साथ ही रिजल्ट चाहिए और न्यूमोनिया के साथ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर एक्सक्लूड। एक्सक्लूड मींस you have considered but you have excluded it for the first analysis, then you can exclude this one and you can include this one. Likewise you can shift as per your need. So right now I am selecting only Bacillus coagulans. Then here there is another system that is known as model or uncultured या environmental या metagenomic samples. So as I already told you, you can use this for metagenomic sequence search. Models are those sequences which are genetically engineered by the human. Okay, like there are so many plasmid sequences are there. So you can use that plasmid sequences for the comparison. So it's a genetically engineered sequences which are available. You can use them. Okay. Interest query means it will help BLAST to search directly. Okay. Interest query will give a BLAST a chance to search directly as per your instructions. For example, if I say this sequence belongs to 16S rRNA, so what will happen? BLAST will understand, okay, it is a 16S rRNA sequence. So this is an optional part. अगर आपने नहीं भी दिया तो भी वो ढूंढ लेता है, पर इससे क्या होगा, वो सर्च लिमिट हो जाएगी 16S rRNA के लिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एक ही सीक्वेंस बहुत सारे पैटर्न में मैच करता है। कल भी हमने देखा था, वही सीक्वेंस आरआरएनए के लिए मैच कर रहा था, वही सीक्वेंस कहीं तो प्रोटीन के लिए भी मैच कर रहा था। सो यू कैन लिमिट देम फॉर द सर्च। ओके, देन ऑप्टिमाइज इट। सो ये हमने कल पढ़ा था, इफ योर सीक्वेंस इज हाईली क्लोज टू दिस ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि ये मुझे सीक्वेंस पता है कि ये इनसे बहुत क्लोज है, तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस। पर अगर ये इनसे क्लोज नहीं है, बहुत डिस्टेंट कंपैरिजन है, देन आई विल गो फॉर समवॉट सिमिलर। ठीक है, और मुझे ये पता है कि ये मैच तो बहुत कम मिलेगा, डिसिमिलर सीक्वेंस ज्यादा मिलेगा, तो फिर आई कैन कंसीडर मोर डिसिमिलर सीक्वेंस, दैट इज डिसकंटीन्यूअस कपल्स। अब नीचे आते हैं एल्गोरिथम पैरामीटर्स। Algorithm parameter is a very important part because these are the directors. ठीक है, ये ऊपर वाले सारे एक्टर्स हैं, ये सब हीरो हीरोइंस हैं, पर इसके पीछे काम करने वाले ये लोग हैं। ठीक है, स्पॉट बॉय, लाइट बॉय सब है, डायरेक्टर, मैनेजर सब है। तो ये समझना है, ये डिसाइड करेंगे कि आउटपुट्स क्या होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ टॉप 10 रिजल्ट्स ही दिखाओ, देखो मैंने यहाँ सेट कर दिया। आई डोंट वांट मोर देन 10 रिजल्ट्स फॉर दिस सीक्वेंस। तो मैंने उसको आउटपुट के लिए बोला कि ओनली गिव मी 10 आउटपुट्स। शॉर्ट क्वेरीज ऑटोमेटिकली एडजस्ट पैरामीटर फॉर शॉर्ट इनपुट सीक्वेंस। शॉर्ट इनपुट सीक्वेंस यानी क्या, कभी कभी ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ना, ये 15 न्यूक्लियोटाइड्स के, 20 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। ठीक है, और ये कंपेयर हो रहे हैं 1000 न्यूक्लियोटाइड के साथ में, 3000 न्यूक्लियोटाइड के साथ में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपने इस फिल्टर को हटा दिया है तो वो 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का इनपुट कभी भी मैच नहीं होगा एंड यू विल सी नो सिग्निफिकेंट सिमिलरिटी फाउंड। पर अगर आपने ये सेट करके रखा हुआ है कि नहीं, अगर शॉर्ट सीक्वेंसेस भी हैं तो भी उसका मैच दिखाइए, देन इट विल आल्सो सर्च दैट फॉर दैट सीक्वेंस। कल एक्सपेक्ट वैल्यू, एक्सपेक्ट थ्रेशोल्ड हमने पढ़ लिया था, 0.05 जनरली रखा जाता है। अभी मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, पर आपको अगर बहुत हाईली स्पेसिफिक चाहिए तो उसको शिफ्ट कर दीजिए
ठीक है, 0.0001 रख दीजिए, यानी हाईली क्लोज्ड सीक्वेंसेस ही हमको मिलेंगे। वर्ड साइज यानी इसका डिस्प्ले साइज है। मैक्स ये इसको चेंज मत करिए, जैसा वैसा रखिए। यहाँ पे मैच और मिसमैच स्कोर है। कल हमने कौन सा कितना यूज किया था, कितना स्कोर वाला यूज किया था? -2 नहीं, +2 और -4. +2 और -4। हाँ, +2 और -4। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ पे देखिए हमारे पास में अलग अलग स्कोर है, 1 -2, 1 -3, 1 -4, 2 -3, 4 -5, 1 -1। सर ये अलग अलग क्यों है और क्यों ऐसे है, ये मुझे आप बताइए जरा, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। when you will use 1 -2, when you will use 1 -3, and when you will use 1 -4, ठीक है? This depends upon your sequence and आप किसके साथ कंपेयर करें। मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अगर आप एक इकोलाई का स्ट्रेन लेते हैं जिसका नाम है ABC और उसका सीक्वेंस दूसरे इकोलाई के स्ट्रेन के साथ कंपेयर करें जिसका नाम है EFG, तो मुझे ये बताइए कि दोनों के अंदर जो सीक्वेंस वेरिएशन है वो कितना चांस है कि ज्यादा होगा या कम होगा? वेरिएशन ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? सर कम वेरिएशन होगा क्योंकि सेम स्ट्रेन्स, हाँ स्ट्रेन्स है ना, जीनस और स्पीशीज बहुत क्लोज है वो। हाँ, तो इस वजह से काफी सिमिलैरिटी हो सकती है। यानी मैं ये कहूंगा कि इनके अंदर मिसमैच या म्यूटेशन ढूंढने के या मिलने के चांसेस तो बहुत कम है, बराबर? हाँ या ना? तो सर पर मिलेंगे ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मिलेंगे। हाँ, मिल सकते, नहीं भी मिल सकते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी है। तो मैं मिसमैच मिलने के चांसेस बहुत कम होने के कारण मैं उसको पेनल्टी बढ़ा दूंगा। मैं कौन सी रखूंगा? 1 -4, क्योंकि अगर मैं ये पेनल्टी रखता हूं तो मेरा स्कोर में मुझे प्रॉपर्ली एनालाइज्ड होगा रिजल्ट, पर अगर ऐसा नहीं करता हूं तो शायद मुझे प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये एक चीज। दूसरी चीज ऐसी होती है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि बहुत सारे जीन्स में या बहुत सारे प्रोटीन सीक्वेंसेस में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो हाईली कंजर्व्ड होते हैं, है ना? बताया था ना, विद इन अ स्पीसीज और विद इन अ ऑर्गेनिज्म और विद इन अ फैमिली कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कंजर्व्ड होते हैं। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि कंजर्व्ड होते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन को छोड़ दिया जाए, उस कंजर्व्ड रीजन को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जितना भी रीजन है उसमें म्यूटेशन ज्यादा होंगे या कम होंगे? पॉइंट समझो मेरा? ज्यादा होंगे सर। ज्यादा होंगे। और जो रीजन का बहुत ज्यादा कंजर्व्ड है उसमें म्यूटेशन ज्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे। कम होंगे, बराबर है ना? है ना? तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब आप कंजर्व्ड रीजन का ब्लास्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? जब आप कंजर्व्ड रीजन का ब्लास्ट कर रहे हो तो आप ये हमेशा मान के चलते हो कि वहां पे म्यूटेशन बहुत कम होंगे, तो आप जो पेनल्टी रखोगे वो ये रखोगे 1 -4, राइट? पर अगर आप नॉन कंजर्व्ड रीजन के साथ में कंजर्व्ड रीजन भी एनालाइज कर रहे हो तो फिर आप 1 -2 रखोगे। समझा? इस तरह से वो पॉइंट है। गैप कॉस्ट मैंने आपको कल समझाया था, 2 बढ़ रहे तो 4 का पेनल्टी। इस तरह यहाँ पे भी अलग अलग वो एल्गोरिदम्स हैं, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं एज पर योर नीड, ठीक है? देन फिल्टर्स क्या है? मान के चलो कि आपके पास में कोई ऐसा सीक्वेंस है, इसी के अंदर मैं एक सीक्वेंस डाल देता हूँ थोड़े समय के लिए, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड। ये मैंने आपका सीक्वेंस यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है? इनपुट है आपका, ये इनपुट सीक्वेंस है।
इसके पीछे में यहाँ पे साइड में मैं नीचे में क्या करता हूँ, ये सीक्वेंस डाल देता हूँ। मैंने रैंडमली डाल दिया है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस का कोई मीनिंग है क्या, कोई बता सकता है? इसका कोई मीनिंग है? ये जो 80 डाला इसका कोई मीनिंग है कि नहीं है? कोई मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि ये है जंक डीएनए, यानी दिस डजंट कोड फॉर एनीथिंग, ठीक है। इसको VNTR भी कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। पर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि इतने रैंडम नहीं होते, उनका भी सीक्वेंस पैटर्न है जो डिटेक्ट किया जा सकता है, और वो स्पीसीज स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक है। हर स्पीसीज में ना एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है उस सीक्वेंस का, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स का, जो लोगों ने ढूंढ के रखा हुआ है। पर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट जो होता है वो कोई भी फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी आप उसको जंक डीएनए कह सकते हो। तो जंक डीएनए का कभी भी ब्लास्ट एनालिसिस में एनालिसिस नहीं किया जाता, क्योंकि इसका कोई डेटाबेस से रिलेशनशिप नहीं मिलता आपको। तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली इतना सीक्वेंस आपके एनालिसिस से हट जाएगा, इवन तो आपके सीक्वेंस में होगा और वो हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ लिख करके रखा है एक सिलेक्शन फिल्टर। क्या लिखा है? लो कॉम्प्लेक्सिटी रीजन को फिल्टर कर दो, यानी जहां पे अगर सीक्वेंस में कोई मैच नहीं मिल रहा है हटा दो। स्पीसीज स्पेसिफिक रिपीट्स जो मैंने अभी बताया, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, आप चाहो तो हटा सकते हो। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म का है, जो भी ऑर्गेनिज्म का होगा वो सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, उसको वहां पे हटा दें। मास्कअप फॉर लुकअप टेबल एंड मास्कअप फॉर लोअर केस लेटर्स। आप चाहो तो इस सीक्वेंस में जो रीजन आपको एनालिसिस में नहीं लेना है उसको लोअर केस में डाल दो। जैसे अब ये सीक्वेंस मैंने सिलेक्ट किया है, इसको मैं कॉपी करके लोअर केस में कन्वर्ट करके फिर से यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस कैपिटल जी के जगह स्मॉल जी हो जाएगा, कैपिटल टी के जगह स्मॉल टी हो जाएगा। रिजल्ट एंड व्हाट विल हैपन, इट विल गेट कन्वर्टेड टू लोअर केस लेटर। आपने क्या बोला है यहाँ पे, मास्क लोअर केस लेटर्स। तो जितने भी लोअर केस वाले सीक्वेंसेस होंगे वो मास्क हो जाएंगे, वो स्टडी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे फिल्टर्स आपको क्लियर हो गए? किसी को कुछ डाउट है? Then click on a show result and blast it. Now results are in front of us. No significant similarity found. कहाँ गलती हुई बताएंगे? हमने ये रॉन्ग सिग्नल डाल दिया था, याद है? हमारे लिए ढूंढने की कोशिश की बैक्टीरिया के अंदर, इसको सर्च करते हैं ब्लास्ट। So here what we are trying to do, we are trying to compare one unknown sequence with the Bacillus coagulans or Bacillus pneumonia, something like that, और अब रिजल्ट देखते हैं। देखिए हमको मैच मिल रहा है यहाँ पे। This is the match where your unknown sequence is matching with the Klebsiella pneumonia for 16S ribosomal rRNA gene। यानी आपका जो जीन होगा या आपका जो सीक्वेंस होगा वो 16S rRNA का है, और वो क्लेब्सियला निमोनिया के साथ में 87.99% मैच हो रहा है, ठीक है। सो ये कब हुआ, जब आपने उसको पर्टिकुलर नाम का स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन दिया कि इनके साथ ही कंपेयर करें। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं बोल रहा हूँ दोनों को एक्सक्लूड कर दो, फिर से ब्लास्ट कर दें। अब दोनों नहीं है, आपने जनरल डेटाबेस सिलेक्ट किया हुआ है।
takes some time. Taking on more time than usual. ठीक है, तब तक यहाँ पढ़ लेते हैं. यहाँ हमने क्या किया है कि we can see the match. So आपका सीक्वेंस इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के साथ मैच कर रहा है, क्लिप्शियला न्यूमोनिया के साथ, जिसके साथ में आप टारगेट किए थे. दिस इज अ गैप, ओके, जो हमने कल पढ़ी थी. गैप कॉस्ट यहाँ पे डिसाइड होगी, यानी these are the gaps that they have put to score more, okay. And this is a pairwise alignment, as you can see here. This is a pairwise alignment. Pairwise alignment में एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ कुछ नंबर दिए हुए 118, ठीक है. 118 क्या है? आपने जो सीक्वेंस लेंथ दी है वो देखना है आपको कितनी है. आपने सीक्वेंस लेंथ दी है 1132, यानी आपका जो AB486008 जो सीक्वेंस आपने पुट किया था उसका लेंथ है 1132. इसमें से 118th न्यूक्लियोटाइड से मैच शुरू हुआ, ठीक है, एंड इट हैज गॉन अप टू 1107 तक, ठीक है. यानी एक 1117 के आगे वाले सीक्वेंसेस एनालिसिस में नहीं आए, ठीक है. तो क्यों नहीं आए हैं, क्या होना चाहिए, ये सब एनालिसिस का पार्ट है. ये आप उसको डिटेल बाद में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. देन यहाँ पे आपको उसका पूरा मैच मिल रहा है. इसकी ई वैल्यू भी देखो 0.00 है. इसका मतलब है कि बहुत अच्छा मैच है, ठीक है, बहुत अच्छा मैच है. 100% तो नहीं है पर बहुत अच्छा मैच है. गैप्स 36 टू PA. सेकंड जो बेस्ट मैच है वो आपका इस ऑर्गेनिज्म के साथ में है, और इट्स अगेन अ वेरी गुड मैच दैट वी कैन से, ठीक है. यहाँ पे रिजल्ट्स आए क्या नहीं है, ठीक है. So this is a normal nucleotide blast, जिससे आप अपने सीक्वेंस की आइडेंटिटी पता कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन से ऑर्गेनिज्म से वो बेस्ट मैच कर रहा है, ठीक है. अब नेक्स्ट बैग एनालिसिस करते हैं. ब्लास्ट पी. ब्लास्ट पी जो है वो जस्ट लाइक न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट है. अब हम फास्ट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको समझ गया ये सारी चीजें. ब्लास्ट पी जो है जस्ट लाइक न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट है, जहां पे हम प्रोटीन क्वेरी इस्तेमाल करेंगे और प्रोटीन डेटाबेस से कंपेयर करेंगे. अब आपको प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए, अगेन गो टू द NCBI, सिलेक्ट वन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है. ये थर्ड पार्टी है, आप अपना सीक्वेंस भी पुट कर सकते हैं, ठीक है. आप अपना सीक्वेंस भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे. तो मैं यहाँ एक ड्रोसोफिला का सीक्वेंस ले रहा हूँ. अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये प्रोटीन सीक्वेंस है विच इज इन अ फास्टा फॉर्मेट इन अ सिंगल लेटर कोड. ये सिंगल लेटर कोड से अमीनो एसिड्स, ठीक है, और ये है आपका प्रोटीन सीक्वेंस. कॉपी दिस. याद रखिए किसका है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का है. प्रोटीन ब्लास्ट हमने चूज किया है. यहाँ पे आपको टेस्ट कर लीजिए. मैं क्रोटिन स्केल था उसमें. यहाँ पे अब कौन सी चीजें नहीं है थोड़ा सा देखना है. यहाँ पे बाकी का सेटअप हट गया है यहाँ से. यहाँ पे पहले देखना, यहाँ पे रेफरेंस सीक्वेंस था, फिर RNA डेटाबेस भी था, कोरोना वायरस वाला भी था, अब नहीं है, ठीक है. तो ये ब्लास्ट प्रोग्राम होने के कारण यहाँ पे चेंज आ गया. अब आप यहाँ पे भी एंट्रीज में नाम अलग अलग हो गए. ये रेफरेंसेस डेटाबेस के टाइप अलग अलग है, दिख रहा है आपको. रेफरेंस सीक्वेंस प्रोटीन, रेफरेंस सीक्वेंस प्रोटीन, मॉडल ऑर्गेनिज्म, यूनिप्रोट, पेटेंटेड सीक्वेंस एंड ऑल. इवन मेटाजेनोमिक्स प्रोटीन्स भी है. देखो यहाँ पे मेटाजेनोमिक प्रोटीन्स, एनवायरमेंटल. आपको किस तरह से करना है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये होमो सैपियंस से कितना मैच करता है. ये मेरी स्ट्रेटजी है. आई कैन कंपेयर. आप चाहो तो अनकल्चर्ड के साथ भी कर सकते हैं. यहाँ एल्गोरिदम चेंज हो गया, आपको यहाँ दिख रहा है. यहाँ पे मेगा ब्लास्ट नहीं है, डिसकंटिन्यूअस ब्लास्ट नहीं है, और ना ही नॉर्मल ब्लास्ट है. यहाँ जो जनरल ब्लास्ट होता है वो है प्रोटीन ब्लास्ट.
ये बाकी के ब्लास्ट जो है मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि हमने अभी प्रोटियोमिक्स में नहीं गए। जब प्रोटियोमिक्स में आएंगे तो ये भी सिखाएंगे। ब्लास्ट भी ही करना है और नीचे एल्गोरिथम पैरामीटर में आएंगे, टॉप 10 सेट करेंगे, ये सब वैसा ही रहेगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स, मैंने आपको समझाया था ब्लॉसम और पैम के बेसिस पे ये है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स अवेलेबल है। पैम है 30, पैम 70, पैम 250, पैम 80। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि कब कौन सा इस्तेमाल करना है। अगर आपको नहीं समझता है, ऑलवेज कीप ब्लॉसम 62। ब्लॉसम 62 सबसे कॉमन है और वो इस्तेमाल किया जाता है। शो रिजल्ट इन न्यू विंडो एंड ब्लास्ट इट। ये पहले वाले का रिजल्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो बैसिलस सबटिलिस का है, दिख रहा है आपको यहाँ पे 100% मैच मिल रहा है, क्योंकि वो उसी से मैच हुआ है, दिख रहा है आपको। तो उसको उसी से कंपेयर नहीं करना है, उसके नीचे वाला आपको देखना चाहिए हमेशा। बैसिलस स्पीसीज या बैसिलस सबटिलिस का है वो सीक्वेंस, 92% मैच आपको मिल रहा है। इस तरह से था। ये आपका प्रोटीन का सीक्वेंस एनालिसिस है। यहाँ हमको क्या सीखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, हमने अल्डोलेज ए, सॉरी अल्डोलेज 1, आइसोफॉर्म एम, ड्रोसोफिलस मेलानोगास्टर का लिया और कंपेयर किया ह्यूमन के साथ में, ठीक है। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन के साथ में, तो ह्यूमन के साथ में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का प्रोटीन सीक्वेंस फॉर्मली देखो कितना मिल रहा है, 70% प्रोटीन मैच कर रहा है। अब आप मुझे बताइए 70% अगर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के साथ हम मैच कर रहे हैं प्रोटीन सीक्वेंस के लिए, अल्डोलेज ए के लिए, इसका क्या मतलब है? कोई मुझे बता सकता है? अगर हम 70% प्रोटीन सीक्वेंस मैच कर रहे हैं एक फ्लाई से, है ना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर से, है ना, और हम तो होमो सेपियन है, फिर भी हमारे दोनों का अल्डोलेज ए बहुत कुछ मैच कर रहा है दोनों का एक दूसरे के साथ। इसका क्या मतलब? क्या बता सकते हैं? We are related to the Drosophila. हाँ, बोल सकते हैं, पर क्यों, कैसे रिलेट हो गए हम, थोड़ा बता सकते हैं? कोई अपनी हाइपोथेसिस पुट कर सकते हैं? अब एक चीज तो थोड़ा ध्यान में देना पड़ेगा कि अगर मैं इस प्रोटीन को एनालिसिस कर रहा हूं यहाँ पे, इस प्रोटीन को होमो सेपियन के साथ कंपेयर कर रहा हूं, अब मैं क्या करता हूं, इसी प्रोटीन को किसके साथ कंपेयर करता हूं, बैसिलस सबटिलिस। तो बैसिलस सबटिलिस के अंदर अल्डोलेज ए प्रोटीन होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, मिलेगा नहीं मिलेगा? मुझे तो लगता है कि नहीं मिलेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मिला क्या? कितना मिला? कितना? 27% मिला है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ड्रोसोफिला का ह्यूमन के अल्डोलेज के साथ में 70% मैच मिला, फिर वही अल्डोलेज बट बैसिलस सबटिलिस का 27% मैच कर रहा है। तो तीनों में इतना वेरिएशन कैसे आ गया? तीनों तो अल्डोलेज ही है, तीनों काम तो अल्डोलेज ही कर रहे हैं, अल्डोलेज का ही कर रहे हैं, फिर भी इतना वेरिएशन कि एक में 100 है, एक में 70 है और एक में 27 है। मजेदार है ना? अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम ऐसा एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्टेंस स्पीसीज एनालिसिस, तो
मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मुझे हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंसेस ढूंढने हैं, मैंने क्या, मेरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर मुझे हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंसेस ढूंढने हैं तो मैं दो प्रोटीन्स जो दो अलग अलग स्पीसीज के लूंगा, वो दो स्पीसीज क्लोज होने चाहिए या डिस्टेंट होने चाहिए? पॉइंट समझा मेरा? डिस्टिंक्ट। Distant. हाँ, डिस्टेंट, डिस्टेंट समझा? क्यों 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 डिस्टेंट होना चाहिए? We want to find out the concept that not change in between that. हाँ, यानी कितना भी चेंजेस हो जाए पर कुछ तो ऐसा पॉइंट है जो कॉमन बचा हुआ है, और वो कॉमन इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो कंजर्व्ड है। समझा आपको? तो इसीलिए डिस्टेंट रिलेशनशिप भी बहुत काम की है अगर आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ना है तो ये आपको यहाँ से आइडिया मिल रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, इसको स्टडी करेंगे हम बाद में, ठीक है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में जब जाएंगे, फाइलोजेनेटिक्स में, तब हम इसको प्रॉपरली समझेंगे। अब ये सबसे आसान प्रोग्राम्स है, ठीक है? ब्लास्ट एन और ब्लास्ट पी सबसे आसान, बिल्कुल आसानी से समझने वाले। अब यहाँ से थर्ड प्रोग्राम शुरू होता है, दैट इज ब्लास्ट एक्स। यहाँ से हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो हमने अभी तक अंडरस्टूड की हुई है, ठीक है? ये है पूरा स्ट्रेटेजी गेम है, ठीक है? यहाँ पे आपको हर एक चीज को समझना पड़ेगा। आप मुझे बताते जाएंगे, मैं वैसा वैसा करते जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि आपको वो समझना है। ब्लास्ट एक्स सर्च प्रोटीन डेटाबेस यूजिंग अ ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड। इसका क्या मीनिंग, कोई मुझे बता सकता है? क्या करता है? सर्चेस प्रोटीन डेटाबेस यूजिंग अ ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड। बता सकता है कोई क्या है? Can somebody will try? मुझे बताइए कौन सा न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलेट होता है? कौन सा न्यूक्लियोटाइड? mRNA gets translated. Right. Okay. mRNA get translated. तो यहाँ पे उसने mRNA ही मांगा होगा ना, कि नहीं? हाँ या ना, फटाफट आंसर दो। mRNA ही मांगा होगा, राइट? सो कीप इन माइंड, ब्लास्ट एक्स में कभी भी आप आरआरएनए या टीआरएनए या जीनोम या होल जीनोम सीक्वेंस इनपुट में नहीं देते। समझ में आ गया? पहले बहुत आसान थे, ब्लास्ट एंड ब्लास्ट भी बहुत आसान थे, पर आप ब्लास्ट एक्स इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू गिव ऑलवेज द एमआरएनए, ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन है, यूकैरियोट्स का एमआरएनए कौन है? क्वेश्चन मेरा टफ है, आपने जितनी बायोलॉजी पढ़ी उसके बेसिस पे पूछ रहा हूँ। यूकैरियोट्स का एमआरएनए कैसे डिसाइड करेंगे? एग्जांपल, या मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, मैंने अगर यूकैरियोट का जीन ले लिया, जीन सीक्वेंस, तो क्या मैं डायरेक्टली उसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ? अबोली इज देयर, अबोली है क्या? Yes, sir. अबोली, अगर मेरे पास में यूकैरियोट का जीन है, उस जीन को मैंने यहाँ उठा के कॉपी कर लिया, तो क्या वो मुझे डायरेक्टली प्रोटीन दे सकता है? No, sir. Why? हमारा यूकैरियोटिक जीन किस तरह का है? क्या क्या होता है उसके अंदर?
वन इज इंट्रॉन अनदर इज एक्सॉन, होते हैं ना? हाँ, Yes, sir. तो इंट्रॉन और एक्सॉन्स होते हैं। तो इंट्रॉन कोई प्रोटीन देता है क्या हमको? इंट्रॉन प्रोटीन देता है क्या हमको? बताइए। नहीं देता ना? कोई दूसरा भी बता सकता है अगर उन्होंने नहीं दिया आंसर तो। इंट्रॉन प्रोटीन देता है या नहीं देता है? नो सर। नो, इंट्रॉन प्रोटीन नहीं देता। यानी हम इसका तो सीधा सीधा यही कहना है ना कि जब तक वो ट्रांसलेट नहीं करता ऐसा न्यूक्लियोटाइड आप यहाँ पे पुट करिए ही मत। इसका मतलब है कि आप अगर किसी बंदे ने, किसी यूजर ने आपको आके बोला सर हमको ना ये जीन का ना प्रोटीन चाहिए, तो डायरेक्टली नहीं बन सकता, ठीक है, कभी भी, क्योंकि जीन प्रोटीन नहीं देता। कौन प्रोटीन देता है? mRNA. हाँ, mRNA प्रोटीन देता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज व्हेनेवर somebody comes and asks you sir I have this gene converted into protein। और बताइए, तो ये दिखता उतना आसान नहीं है, यहाँ से सब टफ काम है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि अगर आपके पास यूकैरियोटिक जीन है तो आप उसको इस सॉफ्टवेयर में नहीं डाल सकते। फिर है आपके पास में प्रोकैरियोटिक जीन। आपके पास क्या है? प्रोकैरियोटिक जीन। तो प्रोकैरियोटिक जीन यहाँ पुट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताइए। मृणालिनी इज देयर? मृणालिनी है क्या? राहुल? यस सर। हाँ, तो यूकैरियोटिक जीन तो नहीं ले सकते, प्रोकैरियोटिक जीन ले सकते हैं क्या? हाँ लेना तो पड़ेगा सर अभी प्रोकैरियोटिक। क्यों लेंगे? आप बोलते जीन ले लेंगे तो कैसे, क्यों ले लेंगे भाई? अच्छा, प्रोकैरियोटिक जीन में इंट्रॉन्स होते हैं क्या? जंग डीएनए उनमें कम होता है क्योंकि उनके जो नहीं, जंग डीएनए इज डिफरेंट। वो जंग डीएनए जीन के अंदर नहीं होता, वो जंग डीएनए हाँ जीनोमिक रीजन में इंट्रॉन होते हैं। रहते हैं पर नहीं रहते, यानी पॉपुलेशन कम होता है उनका। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में कहाँ इंट्रॉन्स होते हैं? They only have exons. दे ओनली हैव एक्सॉन्स, क्योंकि प्रोटीन प्रोकैरियोटिक जीन जो होता है वो डायरेक्टली इनकोड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एमआरएनए को हाँ कोड कर सकता है। कोड कर सकता है ना? तो हम क्या डायरेक्टली प्रोकैरियोटिक जीन इसके अंदर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बताइए। हाँ, ले सकते हैं, ठीक है। ये एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? आप हमेशा याद रखिए ब्लास्ट एक्स में यूकैरियोटिक जीन यहाँ पे इनपुट की तरह नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उसके अंदर एक्सॉन तो होते हैं जो प्रोटीन को जो एमआरएनए बना सकते हैं, एमआरएनए से ट्रांसलेट हो सकते हैं, और उसके साथ साथ में उसके अंदर में इंट्रॉन्स भी होते हैं। इसलिए उसको सजेस्ट नहीं किया जाता कि लेना है। हाँ, पर ये ऐसा भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते, आप ले सकते हो, और उससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी एनालिसिस करने, ठीक है। सो हमेशा याद रखिए ब्लास्ट एक्स में यूकैरियोटिक जीन नहीं ले सकते, आप प्रोकैरियोटिक जीन ले सकते हैं, आप प्रोकैरियोटिक एमआरएनए ले सकते हैं, और आप यूकैरियोटिक एमआरएनए ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी आरआरएनए या टीआरएनए ले सकते हैं या नहीं ले सकते? आप बताइए, कोई भी एक आरआरएनए या टीआरएनए का सीक्वेंस लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं। नहीं। तो फिर यूकैरियोटिक आरआरएनए जीन या प्रोकैरियोटिक आरआरएनए जीन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बताएं। अभी तो आपने नहीं ले सकते ना, समझा? ये पॉइंट समझ रहे हैं ना आपको? सी, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते एनालिसिस। हाँ, तो क्या क्या समझा आपको? इसके अंदर ना हम होल जीनोम डाल सकते हैं,
ना हम इसके अंदर जीनोम डाल सकते हैं, ना इसके अंदर यूकैरियोटिक जीन डाल सकते हैं, ना इसके अंदर में हम प्रोकैरियोटिक आरआरएनए डाल सकते हैं, ना ही प्रोकैरियोटिक टीआरएनए डाल सकते हैं। उसी तरह ना यूकैरियोटिक टीआरएनए, ना ही यूकैरियोटिक आरआरएनए और ना ही उसके जीन्स। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा? यूकैरियोटिक एमआरएनए, प्रोकैरियोटिक जीन और प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। ये तीन ही चीजों का इनपुट यहाँ पे आप डाल सकते हो, अदरवाइज आपको इरॉनियस या रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे। जिसको कुछ समझता नहीं है वो ट्रांसलेट करके दे देगा आपको, वो गलत होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें समझिए आप। अब हमको ये देखना है कि यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट थोड़ा समझ लो। इसने क्या बोला? आप मुझे न्यूक्लियोटाइड क्वेरी दो। आप उसने क्या बोला? आप मुझे न्यूक्लियोटाइड क्वेरी दो, मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला? आप गिव मी अ न्यूक्लियोटाइड, आई विल ट्रांसलेट इट। ओके, और जो ट्रांसलेट होगा वो होगा प्रोटीन। यानी आप न्यूक्लियोटाइड क्वेरी दोगे पर अल्टीमेटली एनालाइज जो होगा वो होगा प्रोटीन, और फिर वो प्रोटीन डेटाबेस से कंपेयर होगा। समझा क्या यहाँ पे? यानी क्वेरी विल बी न्यूक्लियोटाइड, इट विल ट्रांसलेट इटसेल्फ इनटू प्रोटीन, और फिर वो प्रोटीन उठ के प्रोटीन के साथ कंपेयर होगा जिसके साथ में आप कंपेयर करना चाहते हैं। पर वो दिखता इतना आसान तो है नहीं कोई भी चीज, वो समझ लेते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, ये आपका एक एमआरएनए है मान के चलते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर यू नहीं दिख रहा। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में यू कहीं नहीं दिखता, वो हमेशा टी रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पे एटीजी है तो समझ जाना एयूजी है, राइट। मैंने आपको अभी मैं पूछूंगा एक प्रोटीन बनाने के लिए क्या लगता है? इस सीक्वेंस में से कौन सी चीज अमीनो एसिड्स बनाती है? आंसर दीजिए फटाफट। एक अमीनो एसिड बनाने के लिए कौन इन्वॉल्व होगा? अरे क्या क्या फैक्टर होता है वो बताइए। हु गिव्स अमीनो एसिड? फास्ट। ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। हाँ, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड यानी कौन? कोडॉन। कोडॉन। हाँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अभी तो तुम बच्चे नहीं रहे ना, अभी तो 5-6 दिन से हम सीख रहे, मास्टर होना चाहिए अपने। अपने को रिसर्च लेवल पे बात करनी है ना, इंट्रोडक्शन लेवल पे थोड़ी बात करनी है। वो तो 5वीं का बच्चा भी बता देता आजकल कि कोडॉन से अमीनो एसिड बनते हैं ना। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कीप योर ब्रेन वेरी क्लियर। अमीनो एसिड देने के लिए कौन इन्वॉल्व हो रहा है? कोडॉन। ठीक है, अब मुझे कोई भी इस बंदा इसमें से आपके 25-26 लोगों में से बताइए कोडॉन कौन है? कहां से लूं मैं कोडॉन? बताइए कौन से 3 न्यूक्लियोटाइड कोडॉन है? बताएगा कोई? कौन से 3 न्यूक्लियोटाइड कोडॉन है? डोंट गेट हेजिटेट, कोई भी एक आके फटाफट बता दो। What are the 3 nucleotides? What are those 3 nucleotides which forms codon? पहला न्यूक्लियोटाइड ले लूं क्या? ये ले लूं? ये क्या बन जाएगा मेरा? कोडॉन। कोडॉन। फिर अगला कोडॉन कौन है? अगला कोडॉन कौन है? AGT, AGT। उसके आगे वाला? CCG। बराबर है ना? तो आपने बोला कि मैं फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से शुरू करती हूँ या करता हूँ और मैं ATG के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे? अब मेरा क्वेश्चन है, why you have started with A which is available on a first position? आपने पहला न्यूक्लियोटाइड ही क्यों शुरू लिया टू स्टार्ट द कोडॉन? जिसने भी आंसर दिया ना वो ऑन कर लो अपना माइक।
अभी किसने आंसर दिया? डरो मत। कौन था? ओके, मैं आवाज देता हूँ। निकिता, यू कैन स्टार्ट योर माइक। शी इज नॉट देयर आई थिंक। AUG जो है जनरली इनिशिएशन हाँ है, तो वो इनिशिएशन कोडॉन हो सकता है, इसलिए अपन ने फर्स्ट लिया उसको। बराबर, बट बंद मत करो माइक, कीप इट ऑन, हमको डिस्कस करना है। मेरा क्वेश्चन है, हु टोल्ड यू AUG इज द इनिशिएशन कोडॉन? किसने बोला? किसने बोला? पढ़ा होगा ना आपने? यस सर। आपके टीचर ने हमेशा पढ़ा होगा। AUG which codes methionine in eukaryotes, formal methionine in prokaryotes, starts the initiation of protein। बराबर है ना? यस। यही हमने ट्राइवल ने अपना बचपन से यही सीखा है। आंसर बराबर है पर रॉन्ग है। ठीक है, आप बोलोगे सर कुछ भी बोल रहे हैं। रॉन्ग नहीं है और रॉन्ग है भी। अब मुझे ये बताइए, जितने भी ATG सीक्वेंस में आ रहे हैं वो सारे ATG स्टार्ट कोडॉन है क्या? समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? जितने भी ATG होंगे आपके कोडिंग सीक्वेंस में, सारे के सारे स्टार्ट कोडॉन है क्या? सभी से mRNA बनेंगे क्या? You should ask this question, madam. There are so many ATGs. Then why all should go for the protein sequence? है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्यों? मजेदार है ना? ये बहुत मजेदार है। देखो यहाँ पे भी है, तो फिर आपका और भी कई ATG मिलेगा। देखो यहाँ पे भी है, दिख रहा है क्या? यस। तो आप क्या बोल रहे हो? यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ खत्म हो गया, नो। फिर यहाँ से फिर बना, फिर खत्म हो जाएगा, कहीं तो भी और आगे ATG आएगा। तो समझा कि आपको सबको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बोलते हैं, बता सकते इसका क्या बोलूं हम? Open reading frame. ओपन रीडिंग फ्रेम। सबसे पहली बात तो हमको कंसेप्ट पता रहना चाहिए कि ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होती है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, प्रोटीन को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहली दिमाग से हटा दो कि ATG इज ऑलवेज द इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, इज ऑलवेज द इनिशिएशन कोडॉन। ये रॉन्ग है। देयर आर सो मेनी अदर इनिशिएशन कोडॉन्स आर आल्सो देयर। ठीक है, along with the ATG। अब मेरा और क्वेश्चन बाकी रह गया। आपने फर्स्ट से शुरू किया, मेरा क्वेश्चन था यहीं से आपने शुरू क्यों किया? मैं आपका दुश्मन हूं। मैं आपको बोलूंगा मैडम व्हाई यू स्टार्टेड विद A, मैं T से शुरू करूंगा। समझ रहे? तो अगर मैं T से शुरू करता हूं तो मेरा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड कौन होगा? T। तो मेरा सीक्वेंस होगा TGA, फिर मैं आगे बढ़ूंगा GTC CGA। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस का कोडॉन चेंज हो गया। अगर कोडॉन चेंज हो गया तो अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ। होगा। होगा। तो अब मेरा भी कोई तो एक दुश्मन आ गया, बोलता जा तूने सेकंड लिया क्या, मैं थर्ड से लेता हूं। ठीक है, व्हाट विल हैपन नाउ? उसका फर्स्ट रहेगा G, तो स्टार्ट होगा GAG, फिर जाएगा TCC, है ना? इस तरह से फिर अगेन अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। अभी मुझे बताइए, हमने पहला वाला लिया तो एक अमीनो एसिड सीक्वेंस बना, यानी एक प्रोटीन बन गया, बराबर। फिर दूसरा वाला लिया तो दूसरा प्रोटीन सीक्वेंस बना, फिर तीसरा वाला लिया, तीसरा प्रोटीन सीक्वेंस बना। हम तीनों के भी और तीन दुश्मन हैं। वो बोलेंगे नहीं सर, आपने लेफ्ट से क्यों शुरू किया, राइट से क्यों नहीं? आपको थोड़ी पता है कि जीन इधर से शुरू हो रहा है कि इधर से शुरू हो रहा है। समझा क्या आपको?
तो अगला वाला क्या करेगा, उसका फर्स्ट शुरू होगा CAT, उल्टा जाएगा, ठीक है, फिर जाएगा CGA, फिर और प्रोटीन अमीनो सीक्वेंस चेंज होगा। अब आपके पास कितने प्रोटीन हो गए अभी तक, कितने हो गए, 4 हो गए। फिर आगे उसका भी एक दुश्मन निकलेगा तो वो A से बोलेगा, फिर उसका और एक दुश्मन निकलेगा, फिर और एक होगा। तो ऐसे कर करके कितने पॉसिबल हो गए, कितने पॉसिबल हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने पॉसिबल हो गए, 6 अमीनो एसिड सीक्वेंसेस। ठीक है, फिर हमारे बाद में ना और एक बदमाश आया, वो 7वें नंबर का था। बोलेंगे सर आपने इधर से 3 लिए, इधर से 3 लिए, मैं ये लेता हूं चौथा नंबर का, तो क्या होगा बताओ मुझे। मल्टीपल सीक्वेंसेस बनेगा। नहीं, अगर उसने ये वाला ले लिया, मान के चलो ये वाला ले लिया, तो वो किससे मैच कर रहा है, इसके साथ। समझ रहे हैं क्या कि नहीं। अगर इसने चौथा लिया, आपने अभी बोला ना कोडॉन कितने न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, 3, तो उसने अगर यहां से शुरुआत की है तो 1 2 3 बराबर, तो फिर अगला वाला लेगा तो यहां से, तो ये यहां से तो शुरू करा तो इसी का कॉमन हो गया ना। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है सबको। इसको बोलते हैं ओपन रीडिंग फ्रेम। तो ये हो गई +1 रीडिंग फ्रेम अगर आप A से शुरुआत करते हो तो, ठीक है। फिर हो गई +2 यानी आप T से शुरुआत कर रहे हो। ये हो गई +3 यानी आप G से शुरुआत कर रहे हो। समझा क्या सबको। और अगर आप इधर से शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, इधर से शुरुआत कर रहे हो, तो ये हो जाएगा -1 -2 और -3, ठीक है। उल्टा पकड़ना पड़ेगा, सॉरी, -3 -2 और -1, ठीक है। तो ये जो C हो गया ये -1 रीडिंग फ्रेम है, ये जो है ये -2 है, और ये T जो है ये -3 है, और यहाँ पे A +1 +2 और +3, यानी एक mRNA कितने प्रोटीन दे सकता है, एक mRNA कितने प्रोटीन दे सकता है बताओ। अभी तो किया ना हमने, कितने प्रोटीन, मोर देन 1। ऑब्वियसली मोर देन 1, एग्जैक्टली कितने, 6। 6, राइट, करेक्ट, 6। तो ये हो गई ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है। इसको बोलते हैं ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम। 6 ओपन रीडिंग फ्रेम। समझा आपको पॉइंट, सबको क्लियर है। तो आपका एक mRNA थ्योरेटिकली 6 ओपन रीडिंग फ्रेम दे सकता है, जिनके जो नाम हम रखते हैं वो लिखा रहता है 1 +1 +2 +3 -1 -2 और -3। ये डायरेक्शंस होते हैं, एक तो इधर से कोड करेगा, नहीं तो इधर से कोड करेगा। समझा आपको। नाउ सो 6 ओपन रीडिंग फ्रेम्स थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट ORF सिर्फ एक ही होती है, 1 कोडिंग फ्रेम, सिर्फ एक ही कोडिंग फ्रेम करेक्ट होती है। 6 की 6 कोडिंग फ्रेम करेक्ट नहीं होती, पर हमको पता नहीं चलता कि कौन सी करेक्ट है, इसलिए हमको उसको करना पड़ेगा ब्लास्ट X, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लास्ट X। समझे। सो ब्लास्ट X आपको करते रहना पड़ेगा। दिस इज क्लियर। नाउ अब और एक क्वेश्चन बचता है, वापस आते हैं।
क्या क्या समझा, कौन सा सीक्वेंस डालना पड़ेगा? कौन सा सीक्वेंस डालना पड़ेगा? mRNA mRNA डालना पड़ेगा। तो चलो mRNA ढूंढते हैं किसी का। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ हर चीज को, सो दैट आप वो कर पाएंगे, ठीक है? चलो मैं एक mRNA लेता हूँ, अल्डोलेज लेते हैं, सिंपल है, अल्डोलेज ही। ये ले लेते हैं, ठीक है? रैटस नॉर्वेगिकस, स्पेलिंग लिख के रख लो अपने पास, मैं लिख लेता हूँ, रैटस नॉर्वेगिकस। ये मेरे पास में इसका, आई थिंक सॉरी प्रोटीन नहीं चाहिए मुझे, मुझे mRNA चाहिए, मैं गलत कर दिया, मुझे mRNA चाहिए, इसलिए मैं उसके जीन में जाऊंगा, ठीक है? और यहाँ सर्च करूंगा। सर्च में आने के बाद में यहाँ एक बार मैं उसको सर्च करूंगा, ये दिख रहा है ना टॉप में, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ नहीं जाना कभी भी, ये जीनोमिक कंटेंट्स है ना, तो ये जीन सीक्वेंस देगा आपको। और आपने कौन सा ऑर्गेनिज्म लिया है, देखो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, यानी ये यूकैरियोटिक है, समझ रहे हैं ना, जितना लिखा हुआ है। अब यूकैरियोटिक है तो यहाँ से ले सकते हो फिर सीक्वेंस, बताइए मुझे, यहाँ से लूं कि नहीं लूं, बताइए जल्दी जल्दी। yes sir यहाँ से ले सकते हैं, ये जीनोम का पूरा पार्ट है, यानी यहाँ से क्या डाउनलोड होगा, यहाँ से जीन डाउनलोड होगा। तो हमको जीन नहीं चाहिए ना, यूकैरियोट का जीन डाल सकते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना ब्लास्ट एक्स में नहीं डाल सकते, ओके नहीं ला सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ये प्रोटीन है, पी का मतलब है प्रोटीन है, और यहाँ लिखा है, दिख रहा है mRNA, ये आपका mRNA सीक्वेंस है। तो आप इसको ले सकते हैं, यानी ये जो सीक्वेंस है ये आप ले सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे। ये NP को क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि N प्रोटीन है, ये NM है यानी mRNA, इसको आप क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करें, देखो लिखा है mRNA, समझ रहे हैं क्या आपको पॉइंट? ये बहुत क्रिटिकल है। हाँ सिंपल चीजें तो आराम से समझ जाते हैं, बट क्रिटिकल चीजें आपको समझनी है। आपको mRNA चाहिए, mRNA ही डाउनलोड होना चाहिए फास्ट। ये है आपका एग्जैक्टली mRNA जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का अल्डोलेज 1 कोड करता है, ठीक है? दैट टू ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट बी, तो यही मुझे चाहिए। तो ब्लास्ट एक्स का यूज क्या है? ब्लास्ट एक्स का यूज ये है कि ये आपको बताता है कि कौन सा mRNA आपको किस टाइप का प्रोटीन देता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे उसको सीक्वेंस को पेस्ट कर दिया, दिख रहा है? आ गया आपका mRNA सीक्वेंस, यहाँ पे आ गया है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, आपके पास में mRNA आ गया, ठीक है? ये ट्रांसलेट करेगा खुद को, दिस विल ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन, है ना? तो mRNA खुद को प्रोटीन में ट्रांसलेट कैसे करता है? कोई मुझे बताएगा? हमने पढ़ा है ये सब चीजें, फटाफट बताओ। mRNA खुद को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत थी? पहले लेक्चर में शायद हमने पढ़ा था। एक था ये, बराबर, और दूसरा कौन था? याद है क्या कि भूल गए सब लोग? कोडॉन यूसेज, ट्रांसलेशन टेबल, याद आया क्या?
अब मेरे पास में mRNA आ गया है, किसका है वो? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, है ना, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का है। तो मुझे ये बताइए, और कौन सा जीन है? अल्डोलेज, अल्डोलेज 1, ठीक है। अल्डोलेज कौन है? 1, अल्डोलेज 1 जीन है। नाउ मुझे ये बताइए कैसे उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। ये सारे आइडियाज आपके पास में है, क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करो बताइए मुझे, वन बाय वन, कोई एक। सबसे पहला क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, बताओ क्या ढूंढना पड़ेगा, बताइए, टू ट्रांसलेट दिस mRNA इनटू प्रोटीन। मैंने बढ़ाया था, डू यू हैव एनी आइडिया? सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? किसी भी जीन के लिए उसका ट्रांसलेशन टेबल लगाने के लिए क्या डिसीजन चेक की जरूरत थी हमारे को, याद होगा? किसी भी जीन को किसी कोई ट्रांसलेशन टेबल अगर हमको लगाना है तो व्हाट वी हैव टू, व्हाट इज आवर स्ट्रेटेजी, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? जोर से बोलो। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन। नहीं, वो तो सब हो गया ना, पीसीआर एम्प्लीफायर सीक्वेंस आपके हाथ में है। मैंने ये पूछा था, देखो जीन का जीनोमिक लोकेशन याद है क्या? सब भूल गए? मैंने बताया था, याद होगा, जीनोम कितने टाइप के थे, भूल गए? याद है क्या ये चीज? 4 टाइप्स। हाँ, तो अभी हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि हमारे पास एक जीन है, यानी mRNA है उसका, उस mRNA को ट्रांसलेट करना है। पर वो ट्रांसलेट इतने आसानी से हो जाएगा क्या? किसी भी mRNA को ट्रांसलेट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत थी, हमने पढ़ा था ना, क्या क्या पता रहना चाहिए? कोडॉन टेबल। कोडॉन टेबल कैसे पता चलेगा? ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट। कोई भी mRNA का कोडॉन टेबल ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? चलिए बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट। भूल गए? चलो मैं बता देता। हमने पढ़ा था कि सबसे पहली बात, जब आप ये एनालिसिस कर रहे हो, ये वाला जहां पे आपने आपका mRNA पुट कर दिया, यस ये सही mRNA है और ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का है, यूकैरियोटिक mRNA है। हमको ऑर्गेनिज्म का नाम तो पता ही है, हमको ऑर्गेनिज्म के उस सीक्वेंस का जीन भी बताएंगे, अच्छा अल्डोलेज 1 है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये रहेगा कि आपको अल्डोलेज 1 ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जीनोमिक लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? जीनोमिक लोकेशन। हाँ, तो अल्डोलेज 1, अल्डोलेज 1, अल्डोलेज 1 जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का है, वो कहाँ होगा? न्यूक्लियर जीन हो सकता है ना ये, और कौन हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रियल जीन हो सकता है। हमको पता है कि एग्जैक्टली कहाँ होता है? हमको पता है कि कहाँ होता है, कैसे ढूंढेंगे बताओ? वेरी सिंपल, क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड में जाएंगे। भूल गए सब लोग, ये तो इंपॉर्टेंट है। अल्डोलेज 1 ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। आ गया, देखो आया कि नहीं आया? इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में ये याद आ रहा है कि आपको सबको पढ़ा था, हर चीज डिटेल समझाई थी कि कौन सी चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। अब मुझे बताइए कहाँ पे है, कौन से क्रोमोसोम का पार्ट है बताएं?
कुछ दिख रहा है क्या? थ्री ये लोकेशन है, दिख रहा है ये? हाँ, क्रोमोसोम नंबर कौन है? थर्ड क्रोमोसोम। थर्ड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर थर्ड। ठीक है, हमको समझ में आ गया। अब आप मेलानोगास्टर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आ गए, समझ रहे? समझा या नहीं समझा? थर्ड नंबर के क्रोमोसोम पे माइटोकॉन्ड्रिया लिखा था क्या उसने? नहीं। यानी कौन सा टेबल है? कौन सा जेनेटिक कोड यूज करेंगे? बताओ जल्दी। स्टैंडर्ड माइटोकॉन्ड्रियल यूज करेंगे थर्ड नंबर के क्रोमोसोम पे। ठीक है, नहीं समझा? बैक जाता हूँ, बैक जाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। जीनोम में जाएंगे हम, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे पहले। कितने क्रोमोसोम है? दिख रहा है? X 2L 2R 3L 4 3R। उसने क्या लिखा था? 3R। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया से अलग है ना? दिख रहा है क्या? ये क्रोमोसोम लिखे हुए, समझ रहे? ये माइटोकॉन्ड्रियल है, यानी माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड में जाएगा क्या वो? हाँ, जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। 3R है ना, 3R यानी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेसिस पे? हम अप्लाई करेंगे ये वाला। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है ना, तो ये है ट्रांसलेशन टेबल 1 स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, राइट? तो हमारा सीक्वेंस कहां से चला गया? फिर इधर से आगे गया। तो कौन सा जेनेटिक कोड फॉलो करेंगे? देखिए यहाँ लिखा हुआ है जेनेटिक कोड। अमाउंट दे कौन सा यूज करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यहाँ लिखा हुआ है ना? तो देखिए इतने सारे अभी तो 31 तक पहुंच गए, है ना? ये अलग अलग है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग जेनेटिक कोड है। अभी तो हम बहुत सिंपल पढ़ रहे हैं। जब आप हाई लेवल पे जाएंगे ना, इनके ऊपर बैठ के काम करोगे, एटेरियोब्रैंकिया के ऊपर में या कैरियोलेक्टिक्स के ऊपर में या कॉन्डोलोस्टोमा में हो, तो फिर आप जनरल में नहीं रहोगे, आप बहुत हाई लेवल पे चले जाओगे या यूकेरियोटिक न्यूक्लियस में जाओगे। तो ये समझ लो, इसको आपको आइडिया में क्लियर रखना है। चलो अभी क्योंकि हमने पढ़ लिया कि स्टैंडर्ड यूज करना है, तो स्टैंडर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये दिखता उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ क्लिक ऑफ द बटन, बट वेयर टू क्लिक, why to click and when to click, this is the question, है ना? चलो आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे आप चाहो तो पुट करिए ऑर्गेनिज्म का नेम, नहीं तो नहीं। मैं उसको डाल देता हूँ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ताकि आसान हो जाए, क्योंकि हमको स्पेसिफिक सर्च करना है। सर्च कर लेंगे, कंट्रोल V, शो रिजल्ट इन न्यू विंडो एंड ब्लास्ट इट। हाँ, गड़बड़ हो गया। आगे सिलेक्ट करेंगे ब्लास्ट इट। तो अभी मुझे आउटपुट में क्या आएगा, कोई बताएगा? mRNA आएगा कि प्रोटीन आएगा? प्रोटीन। हाँ, और कितनी फ्रेम्स आएंगी? 6। वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गया। अब आप धीरे धीरे साइंटिस्ट बनते जा रहे हो। अब आप किसी ने भी अगर हमको पूछा कि सर जीन से प्रोटीन या mRNA से प्रोटीन, तो आप बोलना कि सर देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट देयर आर 6 प्रोटीन्स आर देयर। उसमें से एक ही जो होती है वो रियल ओपन रीडिंग फ्रेम होती है सर, उसको हमको ब्लास्ट से पता करना पड़ता है। अगर आपने इतना बोल दिया ना, तो आगे वाला आपके ऊपर में एकदम हैप्पी हो जाएगा कि नो, शी नोज और ही नोज समथिंग। आप बोले हाँ सर देयर इज अ प्रोटीन, हाँ होता है सर,
एंड जेनेटिक कोड होता है सर, तो आई डोंट थिंक कि उससे अच्छा आंसर मिल पाएगी। तो आप एक लेवल अचीव करो एक्सप्लेनेशंस में, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी कभी। चलो पढ़ते हैं। अभी ये दिखता उतना आसान नहीं है, यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशंस। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का मैचिंग हमको यहाँ 100% मिल रहा है। तो पहले वाले को क्लिक कर दे, जैसे मैं पहले वाले को क्लिक कर दो, थोड़ा देख लेना क्या होता है। आया, बट ये पहला जो दिख रहा है वो डायरेक्ट आउटपुट नहीं है, इसमें और भी आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये उसने आउटपुट दिया। यहाँ पे +2 रीडिंग फ्रेम, हमारे पास कितनी रीडिंग फ्रेम्स है? अभी बताया 6। नहीं, कितने हैं टोटल, कितने हैं? 6 कौन सी है? +1 +2 +3 +3 -1 -2 -3। वेरी गुड, 6 है। उसमें से आपके सीक्वेंस ने, यानी ये वाले सीक्वेंस, ये वाला जो सीक्वेंस हमने उसको इनपुट दे दिया, ये वाले सीक्वेंस ने जो mRNA है, उसने प्रोटीन का कोडिंग करने का शुरुआत कहाँ से की, ये पहले समझ लो। कहाँ से शुरुआत की? +2 +2। और कौन सी न्यूक्लियोटाइड रीजन से? 257 हाँ, 257th न्यूक्लियोटाइड से। अब आप लिख के रख दो, मैं लिख के रखता हूँ। 257th न्यूक्लियोटाइड पे जो न्यूक्लियोटाइड होगा, ये न्यूक्लियोटाइड है क्या बताइए बड़े? एन जो है ये न्यूक्लियोटाइड है क्या? नो सर, नहीं, ये कौन है? प्रोटीन। हाँ, ये तो प्रोटीन है, पर मुझे तो 257 पोजीशन दी हुई है यहाँ पे, समझे? और एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना, ये 257 है और यहाँ 436 है, राइट? यस सर। तो 436 माइनस 257 यानी वो 180, कितने हो गए? 180 न्यूक्लियोटाइड की रीजन दी हुई है वहां पे, समझा क्या आपको? और नीचे में जो दिया हुआ है उसमें डिफरेंस देखिए 27 to 86 है, राइट? यानी 86 माइनस 27 यानी 60 का आसपास, 60 का रीजन दिया हुआ है, यानी ये टोटल 60 अमीनो एसिड्स है नीचे में। समझा क्या आपको? आया ना? नहीं सर। नहीं समझा, इसीलिए यहाँ आपने क्या किया, आपने न्यूक्लियोटाइड का क्वेरी लिया था, याद है ना? यानी आपने कोडॉन्स दिए उसको, क्या दिए? कोडॉन। समझा क्या? कोडॉन किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोटीन। कौन से बेसिस पे ट्रांसलेट हुए? स्टैंडर्ड 1। जेनेटिक कोड, स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड के बेसिस पे ट्रांसलेट हुए, ठीक है? और ये ट्रांसलेटेड प्रोटीन इस प्रोटीन डेटाबेस से कंपेयर हुए, समझे? तो हर 3 न्यूक्लियोटाइड के पीछे एक अमीनो एसिड है, समझ रहा है क्या आपको? हाँ। तो आपने जो सीक्वेंस दिया उसके हर 3 न्यूक्लियोटाइड माइनस होके एक बनेगा, समझा क्या? हाँ। हाँ, तो अब यहाँ आउटपुट में जब वो आया तो 257th न्यूक्लियोटाइड, समझे? यानी 257, 258 और 259 ये 3 अमीनो एसिड्स, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाया? एक प्रोटीन। एक प्रोटीन जिसका नाम है एन, समझा क्या आपको? हाँ। फिर 260, 261 और 262 मिलकर सेकंड अमीनो एसिड बना जिसका नाम कौन है? वाई। वाई। समझ में आ गया आपको? हाँ। पर जिससे कंपेयर हुआ वो तो डायरेक्ट है ना, ये 27 नंबर का है, ये 28 नंबर का, ये 29 नंबर का है, समझ रहे हैं क्या? हाँ। पर ये जो एन है ना, ये एन है 257, 258, 259, समझा क्या? फिर अगला y जो है 260, 261, 262, इस तरह से। तो ऊपर वाला जो सीक्वेंस है वो आपको बताता है कि mRNA की पोजीशन क्या है, समझ रहे? हाँ। इवन जो ट्रांसलेशन है वो, पर वो पोजीशन किसकी बता रहा है? mRNA।
और नीचे वाला जो है वो रियल पोजीशन बता रहा है, वो प्रोटीन जो मैच हुआ आपके डेटाबेस से, उसका सीधा सीधा रिलेशनशिप। समझा? Yes, आप sir. पॉइंट समझ रहे हैं? हाँ। अब इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि ये बहुत अच्छा मैच है, क्योंकि इसका जो बीच वाला सीक्वेंस है ना, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये है कंसेंसस सीक्वेंस, यानी बहुत अच्छा मैच हुआ है, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे भी मुझे कौन सी फ्रेम मिल रही है? +2। सभी जगह मुझे कौन सी फ्रेम मिल रही है? +2। अब आप बोलोगे सर पूरे 6 फ्रेम्स क्यों नहीं आई? क्योंकि इनको सब अच्छा मैच मिल गया है, इसलिए ये पूरे के पूरे बेस्ट मैच में आ रहे हैं। समझ रहे हैं आपको? सो आप बोलोगे +2। तो आपने और एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि 27th अमीनो एसिड से शुरुआत होती है, तो बाकी के अगले 26 कहाँ गए सर? है ना? बाकी 26 अमीनो एसिड्स गायब हो गए ना इधर से। समझ रहे हैं आपको? मैच मिल रहा है क्या आपको? यहाँ पे 26 अमीनो एसिड्स तो दिख नहीं रहे। नीचे आएंगे तो देखो, दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? समझा कि नहीं समझा? यानी जो पहला आया वो बेस्ट होगा, ये गारंटी नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। यानी आपको ये सबसे सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट अमीनो एसिड से ही मैच मिल रहा है। कौन सी पोजीशन? 278। 278। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि आपका जो 278, 279 और 280 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो कौन से न्यूक्लियोटाइड्स है बता सकता है कोई? बता सकता है? Yes, sir. If we know the translation table for M, then we can say. M is for methionine। अब बताओ। So actually, I don't know. Start codon. हाँ, कौन सा स्टार्ट कोडॉन? हाँ, AUG. हाँ, AUG। यानी आपके इस mRNA में, इस mRNA में 278th पोजीशन पे, 278th पोजीशन पे कौन होगा? AUG. AUG। और जब कोई फर्स्ट कोई तो लड़की ने बोला था कि सर ATG ऑलवेज स्टार्ट्स, तो सारे ATG स्टार्ट नहीं करते। आप बोल सकते हैं सर 278th न्यूक्लियोटाइड का जो ATG है वहां से इनिशिएशन कोडॉन शुरू होगा। समझा आपको पॉइंट? Yes, sir. ये बताएगा आपका ATG। बाकी सारे ATG नॉर्मल है, वो इनिशिएशन कोडॉन नहीं है। समझा? और एक टोटल ही, हाँ बोलिए। Who know this why this 278? मतलब कोई एल्गोरिथम है बैकग्राउंड में for this 278 selection? ये है ना, यहाँ से देखो, ये डेटाबेस में जिससे मैच कर रहा है ना, वो फर्स्ट अमीनो एसिड से कोड हो रहा है, दिख रहा है यहाँ से? Yes, sir. ये रियल प्रोटीन है। बट नीचे आपने और एक दिखाया, वहाँ पे 27 समथिंग था। और एक हाँ, पर यहाँ पे N है, M नहीं है। नो सर, नॉट क्लियर। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो है, ये अलाइनमेंट ये इस डेटाबेस से हुई, इस प्रोटीन के साथ हुई। ये प्रोटीन जो है ये कंप्लीटली सीक्वेंस्ड नहीं है, ये पार्शियल सीक्वेंस्ड है। समझ रहे हैं क्या? यानी ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन पार्शियल है, इसके अगले 26 अमीनो एसिड का सीक्वेंसिंग ही नहीं है। ओके, इसलिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। पर ये जो प्रोटीन है इसका आपको प्रॉपर फुल लेंथ सीक्वेंस है 361 अमीनो एसिड्स का, ठीक है? इसलिए आपको फर्स्ट अमीनो एसिड से लेके पूरे अमीनो एसिड का मैच मिल रहा है। देखिए यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे देखो सेकंड से शुरू हुआ, पहला वाला नहीं हुआ, पार्शियल है। देखिए ये करेक्ट है, दिख रहा है? तो सर हमेशा जो फर्स्ट आएगा उसको ही सिलेक्ट करना पड़ेगा या ऐसा यस कुछ? यस यस, फर्स्ट वाला दिस से इज द रूल, जैसे थंब रूल होता है कि फर्स्ट वाले से ही हमें कंसिडरेशन करनी है, तो हमारा वो राइट होगा, ऐसा होगा सर? हाँ भी और ना भी।
उसके हाँ, लिए ध्यान डिपेंड रखना। करेगा, बताता हूँ। अच्छा उसके लिए डिपेंड करेगा कि आपका सीक्वेंस वो पूरा कवर करना चाहिए इनिशिएशन कोडॉन। अगर आपका तो एमआरएनए मतलब तो हाँ, वो कैसे तो- पता चलेगा सर कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, इसके लिए आपने एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट जब किया ना, हाँ हाँ इस सीक्वेंस का जब न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट करेंगे तो आपको क्वेरी कवरेज दिखेगी कि कितना परसेंट मैच किया। हाँ, तो जैसे 97 हो रहा है, जहाँ पे 100 हाँ। हो रहा है, हमने वही सिलेक्ट किया सर, है हाँ, ना? वो सीख के तो वो आपको यहाँ अच्छे रिजल्ट मिलाएगा। पर अगर आपने 50% 60% वाला ही लिया, यानी मान तो लो फिर भी सर फिर भी देखिए, पहला जो आपका आया वो आंसर तो 27 या जो 27 से आया सर, है ना? हाँ हमने तो 100 वाला मैच करके ही आपने डाला था सर उसमें। हाँ, तो यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे कैसा है ना कि आपने बराबर डाला, पर जिससे मैच हुआ ना वो पूरा नहीं है। अच्छा, तो इसलिए वो पहले आ गया, यानी ऐसा हो सकता पहले आ है। गया, वो पहले आ गया, वो पहले आ गया क्योंकि उसका जो स्कोरिंग सिस्टम है वो हाई है थोड़ा। देखिए 710 बिट्स का है ना, इसका देखिए कितना है, 693 बिट्स। बिट्स का फर्क है, इसलिए वो टॉप में आ गया। तो फिर भी यहाँ पे वो स्कोर के बेसिस पे अरेंज कर देता है। पर यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि पहला वाला ही सही होगा ये जरूरी नहीं है। अच्छा हाँ, सर सर, ये तो स्कोर जब कौन ये सा है? सर 710 जो को 710 बाइट बिट्स जो लिखा है सर, हाँ। और ब्रैकेट में 1832, व्हाट स्कोर डज है, दिस सिग्निफाई? स्कोर है, वो स्कोर ही है, वो उसका टोटल स्कोर है यानी सर न्यूक्लियोटाइड का सर क्या? मैच का, मैच का स्कोर, मैच का स्कोर है। हाँ, और कोई पूछ रहा था? सर आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन, दिस स्कोर मींस व्हाट इज दिस +2 +3 वो वाला स्कोर है क्या, कुछ और चीज है? हाँ, जैसे वही जैसे है। परसेंटेज में हम बताते थे सर, स्कोर पहले परसेंटेज में होता था ना, हाँ, तो ये नंबर में है सर, ये इसलिए देखिए यहाँ पे इसलिए परसेंटेज दिया है 368 आउट ऑफ 368। कंफ्यूजन है सर, फिर काफी नहीं। कंफ्यूजन हो जाता है सर उसकी वजह से। नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका सीक्वेंस, आपका एमआरएनए जो 368 अमीनो एसिड्स बना रहा है, आपके एमआरएनए ने 368 अमीनो एसिड्स बनाए, वो पूरे के पूरे प्रॉपरली यहाँ मैच हुए, ऐसा वो बोल रहा है यहाँ पे। जो एनालिसिस में आए, फिर यहाँ पे देखिए जो 361 है वो पूरे के पूरे यहाँ पे आ गए मैच में। ऐसा नहीं हुआ कि मैच नहीं मिला, और अच्छा मैच है, यानी ये परफेक्ट है। सिर्फ आपको ये देखना है कि अब यहाँ पे इनिशिएशन कहां से हो रहा है। तो आपके एमआरएनए का 278 न्यूक्लियोटाइड विल एक्ट लाइक अ सीडीएस, कोडिंग सीक्वेंस। मैंने बोला था ना एमआरएनए के अंदर कौन होता है, कोडिंग सीक्वेंस। तो कोडिंग सीक्वेंस की रेंज आपको अगर बतानी है तो बताना पड़ेगा 278 न्यूक्लियोटाइड से लेके 1360 तक। ये हो गया आपका कोडिंग सीक्वेंस। समझा आपको? और 1361, 62 और 63 जो होगा वो डेफिनेटली स्टॉप कोडॉन होगा, डेफिनेटली स्टॉप कोडॉन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज। Forgotten the name of the software, बायोएडिट। हम बायोएडिट में उस चीज को एनालाइज करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सीक्वेंस को सेव कर देंगे। ये जो सीक्वेंस है इसको हम सेव कर देते हैं। कॉपी,
पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना बायोमेट्रिक का सबको? यस फाइल ओपन करेंगे उसको। ठीक है। सो अब हमारा एनालिसिस क्या बोलता है कि 278 न्यूक्लियोटाइड करेक्ट है। 278, 279 और 280 ये हमेशा हमारे ATG होने चाहिए। चलो चेक करते हैं। ये 10 है, हम आगे बढ़ेंगे। दिख रहा है ये है आपका इनिशिएशन कोडॉन, यानी बाकी के जितने भी ATG आएंगे वो हमारे काम के नहीं है, और ये +2 रीडिंग फ्रेम से कोड होने वाले हैं। और यहाँ से हमारा कोडिंग सीक्वेंस यानी CDS डिसाइड होगा कहाँ तक। 278 से शुरू होगा और खत्म कहाँ हुआ है 1360, यानी 1361, 62 और 63 डेफिनेटली स्टॉप कोडॉन होने चाहिए। चलो चेक करते हैं। 1360, 1360 कहाँ गया ये आपका 1360 दिख रहा है। और उसके बाद में जो 3 है, 1 2 और 3 UAA यानी TAA, यहाँ आपका प्रोटीन स्टॉप हो जाएगा, यानी इतना पार्ट आपका CDS है, कोडिंग सीक्वेंस। समझा क्या आप लोगों को? तो ये है पावर ऑफ ब्लास्टेक्स, जो आपको एग्जैक्ट बता सकता है कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। यानी आपके mRNA में 278 न्यूक्लियोटाइड पोजीशन से लेकर 1368 पोजीशन का जो रीजन है ये हाईली इंपॉर्टेंट रीजन है। इसमें अगर कोई भी म्यूटेशन हुआ तो प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कोडिंग सीक्वेंसेस हैं। ये सारे के सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं कन्वर्जन में यानी ट्रांसलेशन में। सबको समझा? सर ये बायो एडिट में भी फास्टर फॉर्मेट ही लगता है सर? हाँ, फास्टर फॉर्मेट यानी सब जगह फास्टर। यस तो सर एक मेरा क्वेश्चन था सर, जो PCR के जो हमें आंसर मिलता है हाँ, वो भी हमें फास्टर फॉर्मेट में ही मिलता है क्या? फास्टर फॉर्मेट में ही मिलता है। नहीं मिलता है, या नहीं भी मिला तो बहुत सिंपल है, ग्रेटर देन साइन फॉलोड बाय कुछ लिख दीजिए, इंटर मारिए, नेक्स्ट लाइन से सीक्वेंस डाल दीजिए, दैट्स इट। बहुत आसान है। ये देखिए ना, ये दिख रहा है ना, ग्रेटर देन साइन कुछ इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, इंटर कर दीजिए, नेक्स्ट लाइन से सीक्वेंस। पास्ता बनाना कोई बड़ी डील नहीं है, कोई भी सीक्वेंस हम पास्ता में कन्वर्ट कर सकते हैं। At the starting you say global versus global is not possible. हाँ, So ऐसा कोई मतलब कर ही नहीं सकते क्या हम? कर सकते हैं, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है। Okay. पर उसके लिए उतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जब हम जीनोम वर्सेस जीनोम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, वो आप अगर 3-4 साल सीखोगे उसके बाद उस लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। Okay. हम एक मैडम को बुलाने वाले हैं कुछ दिनों बाद में, जो कंप्यूटर साइंस PhD इन जीनोम असेंबली है, असेंबलर। उन्होंने खुद असेंबलर बनाया है, यानी जीनोम को असेंबल करने के लिए जो है उसमें वो सिखाएंगे आपको एग्जैक्टली कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप किया जाता है और जीनोम असेंबली कैसे किया जाती है। समझा आपको? तो वो आपको सिखाएगी। मैंने आपको बता दिया, मैं एक्चुअली थोड़ा सा रखना चाहता था, पर ठीक है, मुझे बता दिया तो मैं समझाता हूँ आपको सब चीजें, ठीक है। तो हम वो वर्क कर रहे हैं, वो आपको समझाएंगे प्रॉब्लम।